ہیں. میری کوشش تھی کہ ذرا مختلف طریقے سے شروع کیا جائے، لیکن کیونکہ آپ لوگ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں پاکستان میں، پاکستان سے باہر جتنی ہماری کمیونٹی ہے، تو اس میں ہوتا ہی ہے کہ بہت سارے حادثات ایسے ہوتے ہیں جس میں دل نہیں کرتا کہ اس طریقے سے شو شروع کیا جائے جس طریقے سے میرا ایک سٹائل ہے شروع کرنے کا. لیکن کیونکہ ایک ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے شو سٹارٹ کرنے کی، تو اس لیے میرا بالکل نہیں دل تھا کہ آج میں جو ہے، میں نے جیسے بھی کیا اوبیسلی مجھے دل میں بھی ہوتا ہے کہ اس وقت جو دنیا میں ہو رہا ہے، جو اسپیشلی ابھی جو زلزلہ، خوفناک ترین زلزلہ جو ہے وہ ترکی، سیریا، فلسطین اور لیبنان میں آیا. وہ جو ترکی اور سیریا میں تباہی مچی، ہم نے ابھی ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں، دل خراش واقعات ایسے کہ کچھ تو میرے بالکل ذہن میں ایسے بس گئے ہیں کہ شاید ساری زندگی میں نہ بھلا سکوں. کہ راتوں رات دیکھیں آپ کہ وہاں پہ کیا تباہی آئی، کیا 7.8 ریکٹر اسکیل کے اوپر جو زلزلہ ہے، جس میں آپ نے فوٹیجز دیکھی کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس ٹائم پہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو میری طرف سے، پورے ہمارے نیٹ ورک کی طرف سے، جو جتنے لوگ ہیں وہاں پہ، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین. اٹ از انبلیویبل، مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں بتانے کے لیے کہ اس وقت وہاں پہ جو لوگ تکلیف سے گزر رہے ہیں. مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ نے بلڈنگز گرتی ہوئی دیکھی، آپ نے لوگوں کو ملبے کے نیچے دبے ہوئے دیکھا. میں نے وہ 2 بچے اور وہ جو چھوٹی بچی ہے وہ جس طریقے سے دبی ہوئی، اور ایک بچے کی ولادت بھی ہوئی اور اس کی مدر جو ہے وہ وفات پا گئی ملبے کے نیچے. اب یہ بھی ایک معجزہ ہم نے دیکھا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اس وقت حالات جو ہے کافی مطلب آؤٹ آف کنٹرول ہیں، اور اس موقع کے اوپر مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے، اور آئی ایم ایکچولی سرپرائزڈ، اور میں بالکل سوچ میں پڑ گئی ہوں کہ اس موقع پہ کسی ملک کا دورہ کرنا یا یہ اناؤنس کرنا کہ آپ وہاں جا رہے ہیں وہاں کا حالات دیکھنے کے لیے، یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ اگر فرض کریں خدا نہ کرے میری کوئی باہر کے ملک میں کوئی دوست ہے اور ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے اور میں فوراً اسے کال کر کے کہوں کہ ہاں ہاں میں پہنچ رہی ہوں، تو ظاہر ہے ایک ایئرپورٹ سے لینا ہوتا ہے، آپ کو ایک پروٹوکول ہوتا ہے، کچھ کر کے لے جانا ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ کسی ملک کا دورہ کرنا جس میں اس وقت ایسی ڈیوسٹیشن ہے کہ شاید ان کی پوری ہسٹری میں اتنی تباہی نہ آئی ہو، اس وقت کیا وہ ان کو ایئرپورٹ لینے آئیں گے یا ان کو دکھائیں گے کہ اچھا جی دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. تو مطلب ایک جو کامن سینس جو ہوتی ہے، جو ہمارے ملک میں، سوری معاف کیجیے گا مجھے کہنے میں کوئی وہ نہیں ہے، کہ بالکل کامن نہیں ہے، کہ انسان سوچتا ہے، سمجھتا ہے کہ آپ سوچیں کہ اتنے وہاں پہ ہولناک مناظر ہیں تو اس میں کیا آپ جا کے دیکھیں گے. اور جو یہاں سے ایک ہمارے ہیں، انہوں نے ایک اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ اتنے ٹینٹس جو ہے وہ وہاں پہ بھجوائے جائیں گے ان کی مدد کے لیے. تو جو ابھی فلڈز آئے، ابھی جو اتنا سیلاب آیا، اس میں باہر سے جو اتنی ایڈ ملی، وہ بیچارے رو رو کے بیٹھے رہ گئے، ان کو کسی نے ٹینٹس نہیں دیے، اور وہ ٹینٹس جو ہیں وہ بیچنے کے لیے ادھر ادھر ہو گئے، اور جو آٹے کی بوریاں اور پتہ نہیں کیا کیا جو کہ گوداموں میں بھری ہے. تو جب آپ اپنوں کو نہیں دے سکتے تو آپ باہر والوں کا سوچ رہے ہیں کہ آپ باہر والوں کو بھیجیں گے دنیا کو دکھانے کے لیے. ایک تو ہم میں دکھاوا بہت ہے، ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، جو سوچتے ہیں وہ کہتے نہیں ہیں، اور جو بولتے ہیں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. اس کا ہم جو بول رہے ہوتے ہیں بس ایسی جی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا. ہر چیز ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر انسان کی بہتری چاہتا ہے، لیکن اگر ہم خود بہتری نہ چاہیں تو وہ پھر ہمارے اوپر ہے. تو یہ کہنا کہ فلانی ایڈ آپ بھجوا رہے ہیں، جو پاکستان میں ایڈ آئی ان بیچارے سیلاب زدگان کے لیے جو کہ بے یار و مددگار ابھی تک کچھ جگہوں پہ، کیا بہت ساری جگہوں پہ ہیں، ان کو نہ ٹینٹ صحیح ملے، نہ ان کو کوئی ایڈ ملی، ساری گوداموں میں ادھر ادھر بیچ رہے ہیں. میں نے کوئی جلسہ ہو رہا تھا کسی جگہ پہ، اس میں زمین پہ جو بچھے ہوئے تھے اس کے اوپر سامنے لکھا ہوا تھا ایڈ فار فلڈ ریلیف، اور وہ سارے جو ٹینٹس تھے وہ نیچے بچھائے ہوئے تھے. تو پلیز اگر آپ کچھ کسی کو کہتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ پھر پکڑ کریں گے کہ زبان سے نکلی ہوئی بات کسی کو کہہ کے نہ پوری کرنا، وہ آپ کی پکڑ ہوگی، بنسبت جو ہے آپ شو شاہ کے لیے یا اپنے 4 نمبر بنانے کے لیے لوگوں کو کہہ دیتے ہیں ہاں ہاں یہ کام ہو جائے گا. اور اگر آپ وہ کام نہ کر سکے تو دوسرا اس آس میں لگا رہے گا، اور وہ آس جو ہے
وہ اللہ تعالیٰ تک ڈائریکٹ پہنچتی ہے کہ آپ نے کسی کی امید باندھی اور اس امید کو پورا نہیں کیا. تو پلیز سوچ سمجھ کے بات کیا کریں, کسی سے وعدہ کیا کریں, کسی سے کچھ کہا کریں تو 10 دفعہ سوچیں کہ آیا آپ یہ پوری کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, یا آپ صرف کہنے کے لیے اور اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے. تو پلیز میری طرف سے اللہ تعالیٰ ان کی اس وقت مدد فرمائے. اور جو وہاں پہ سیریا میں, لیبنان اور فلسطین میں اتنے نقصانات نہیں ہوئے جتنے سر فہرست اس وقت ترکی ہے, اور اس کے بعد جو ہے سیریا ہے. اور سیریا ویسے ہی بہت زیادہ اس وقت مشکلات کا شکار ہے, ایکسٹریم مشکلات, جہاں پہ جنگ بھی ہو رہی تھی, بیچارے لوگ در بدر ہو گئے. سو دعا کریں, ہم لوگ کوئی دور نہیں ہیں, یہ ریجن پورا جو ہے یہ بہت خطرناک ہے زلزلوں کے حوالے سے. دوسری بات, یہ ریئل اسٹیٹ والوں نے اتنی لمبی لمبی یہاں پہ اسلام آباد میں بلڈنگز اکٹھی کر دی ہیں پیسے کی خاطر, حالانکہ سی ڈی اے نے 3 منزلہ سے زیادہ الاؤڈ نہیں تھا اس شہر میں کنسٹرکشن, اور آپ دیکھیں کہ اسکائی اسکریپرز بن رہے ہیں. تو خدا نہ کرے اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے, اللہ میرے منہ میں خاک کہ میں ایسی, لیکن یہ ایک ریالٹی ہے, اس ریالٹی کو فیس کرنا پڑتا ہے ہم سب نے کہ زلزلے, طوفان, یہ قدرتی آفات ہے, اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. مرگلہ ٹاور پچھلے 2005 کے اس میں ایک دم سے منہدم ہو گیا, اس کے بعد ایک سبق سیکھنا چاہیے تھا, نہیں اب آپ جائیں وہ بن گیا ہے, اتنی لمبی لمبی بلڈنگز ہیں, تو کیسے ایک ارتھ کو ایک زون کی جو بیلٹ ہے جہاں پہ نیچے پلیٹس ہیں, آپ کو پتہ بھی ہے پلیٹس ہیں, اور آپ نے وہاں پہ لمبی لمبی بلڈنگز بنا دی ہیں. تو لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا بند کریں. کتنے پیسے کمائیں گے, سارے وہیں رہ جائیں گے, ادھر ہی رہ جائیں گے, کہیں آپ نہیں لے کے جا سکتے. تو پلیز بی کیئرفل اینڈ ریئلسٹک ہوں, ایموشنل نہ ہوا کریں. جو بھی تھوڑی بہت انسان کی احتیاطی تدابیر ہیں وہ آپ کو رکھنی چاہیے, بچوں کے حوالے سے, اپنے حوالے سے, اور اس کو پریکٹیکلی سوچنا چاہیے. آج کا سوال آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے سب سے بڑے جزیرے یعنی آئلینڈ کا نام آپ نے بتانا ہے. ایک ہمارا بڑا خوبصورت صوبہ ہے, وہاں پہ یہ آئلینڈ موجود ہے. اس کے علاوہ آپ کال کر سکتے ہیں, لائیو کال کر سکتے ہیں 051-410-2357 پہ. آج ہماری جو گیسٹ ہیں وہ جرنلسٹ ہیں, ہیومن رائٹ اسپیکر ہیں اینڈ انفلوئنسر ہیں, نبیہ شاہد ہوں گی. اور دوسرے مہمان جو ہیں وہ بختاور محمود ہیں, اینکر, جرنلسٹ, موٹیویشنل اسپیکر. ملک خدا عابدہ پروین جی کا خوبصورت کلام وہ آپ کو سنائیں گے, اور جو کویسچن ہے اس کا آپ کو ڈیٹیلڈ جگہ, وہ جگہ پاکستان میں جو کہ بہت خوبصورت ہے اور ایک آئلینڈ ہے اور دنیا میں آہستہ آہستہ مشہور ہو رہا ہے, تو آپ کال کر کے بتا سکتے ہیں 051-410-2357 پہ. آج کی جو ریسیپی ہے وہ ہے آلو گریوی, یعنی آلو گریوی, آلو چکن گریوی میں نے بولا تھا, چلیں کوئی بات نہیں ہے ناظرین, خالی آلو گریوی ود بوائل رائس ہے. تو ریسیپی جو ہے وہ چینج ہو گئی, کوئی بات نہیں ہے, اس کو ہم آلو گریوی بنا دیں گے. حالانکہ اسی میں آپ اگر چکن ڈال لیں تو آلو چکن کری ہے, وہ بیسک اس کی ریسیپی ہے, لیکن ہم اس کو آج خالی آلوؤں کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں. اٹس آل رائٹ. ساتھ میں ایک چائے کا گھونٹ پی لو ناظرین. کل پرسوں سے بہت پریشانی تو نہیں, آئی واز سو شاک ٹو سی کہ رات کو آپ سوئیں اور صبح 4 بجے, اور پھر دیکھیں کہ ایسی قدرتی آفات سے پہلے جو چڑیاں اور پرندے ہیں, وہ جو ویڈیو میں نے دیکھی جس میں ایک درخت سے دوسرے درخت میں ایسا تھا کہ کوئی وبال مچا ہوا ہے. اور پھر ایک ڈاگ کا میں نے ویڈیو دیکھا جس میں وہ بڑے عجیب طریقے سے جو ہے وہ آوازیں نکال رہا ہے اور بھونک رہا ہے. ان لوگ جو چرند پرند ہوتے ہیں, جانور ہوتے ہیں, ان کو ایسی قدرتی آفات سے پہلے ان کے اندر سینسرز ہوتے ہیں جس سے ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. اس لیے جب بھی ایسا کوئی ہو تو پلیز کیئرفل رہا کریں اور تھوڑا سا احتیاطی تدابیر ضرور اپنائیں, کیونکہ ہمارے ملک میں نہ فرسٹ ایڈ کا کوئی کانسیپٹ ہے, نہ فائٹنگ میں یا فائر کو کس طرح ایگزٹ کیا جاتا ہے, یہ کوئی ہمیں ٹریننگ نہیں ہے. ہم ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو کوشش کریں زلزلے کے ٹائم پہ جو دروازے کی چوکھٹ ہوتی ہے ادھر, یا پھر جو سیڑھیاں ہوتی ہیں اس کے نیچے, یا پھر سب سے بیسٹ بات ہے کہ آپ اپنے جگہ سے بالکل فوراً باہر نکل جائیں, وہ سب سے بیسٹ ایک آپشن ہے. لیکن دیکھ کے, کیونکہ زلزلے کے ٹائم پہ اگر آپ گرتے ہیں تو وہ چوٹ جو ہے یا وہ ہڈی آپ کی وہ بہت دیر میں ہیل کرتی ہے. سو یہ باتیں بھی کرنا ناظرین ضروری ہوتا ہے. اب یہ نہ کہیں کہ جی بس صبح کے پروگرام میں ہلڑ بازی ہونی چاہیے,
awareness भी कोई चीज़ है, it is very very important to give you information. Hello, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, कैसी हैं निशितमान? मैं ठीक ठाक, खैरियत से. कौन बात कर रही हैं? जी मैं फातिमा बकर से बात कर रही हूँ. फातिमा बकर से. कैसी हैं फातिमा? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक खैरियत से. आप सुनाएं. बहुत दुख हुआ है जो तुर्की में ज़लज़ला आया और इतना नुकसान हुआ है. जी जाहिर है, अगर हम इंसान कहते हैं तो फिर दुख तो होना चाहिए. जी बहुत नुकसान हुआ. अल्लाह ताला मरने वालों की मग़फ़िरत फरमाए और जो ज़ख्मी हैं उनको जल्द से अजाब करे. आमीन सुमामीन, आमीन सुमामीन. तो ये बताएं फातिमा, आज के सवाल का जवाब कि वो कौन पाकिस्तान का सबसे बड़ा जजीरा यानी आइलैंड जो है वो कौन सा है? हैं? पाकिस्तान में जजीरा? पाकिस्तान में जजीरा है ना? पाकिस्तान में? जी जी, कराची के समुंदर में है शायद. कराची के समुंदर में है, जी लेकिन पता नहीं है. नाम है ना उस जजीरे का? कोई नाम बताएं, क्या है? इसका नाम हैं? पता नहीं है, मुझे क्या? याद नहीं आ रहा. याद नहीं आ रहा? चलो कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम, कोई ऐसी बात नहीं है. तो कोई आपकी आप क्या बना रही हैं? आज आलू करी बना रही है. इसमें ग्रेवी लिखा हुआ है बट आलू करी है. आलू चिकन करी थी लेकिन ये कि वो अब आलू करी हो रही है खाली. आप बात अम्मी और भाई को आज भूल गई हैं शायद. क्या कह रहे हैं? अम्मी और भाई को सलाम नहीं किया आपने. मैं अभी कर रही हूँ, 2 मिनट मुझे दें, मैं बिल्कुल कर रही हूँ, मुझे सब याद है. एक उससे चलती हूँ मैं, सिमिट्री से. बहुत शुक्रिया, थैंक यू. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फातिमा. और ऑन दिस नोट, अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक है नाज़ी? मम्मी से अभी मेरी डिटेल्ड बात हुई और हम यही बातचीत कर रहे थे कि ऐसे मौके पे दौरा करने के लिए जाना बहुत गलत था. और सोचे तुर्की की जो गवर्नमेंट और उनकी जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने रोक दिया कि भाई अभी ना आएँ, यहाँ पे हम मलबे के नीचे से लोगों को निकाल रहे हैं, तो आप आएंगे तो आपको एयरपोर्ट पे कौन लेने आएगा और क्या होगा. तो मतलब प्लीज़ यूज़ योर सेंस नाज़रीन. हम लोग बहुत मतलब हमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना ज़िंदगी गुजारने का वो आना चाहिए. सो दावर भाईजान को भी ख़ास सलाम मेरा. कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं नाज़रीन? दावर भाईजान और मम्मी कल गए थे गाबा, वहाँ का फेमस जो है कराची का ऑप्टिशन जो है अपने चश्मे बनवाने के लिए. मैंने भी वहीं से बनवाए थे, बड़ा फेमस है वहाँ का. उसके अलावा अज़ीज़ और साथ में दिलावर को भी मेरा ख़ास सलाम नाज़रीन. हमारी वर्क फोर्स जो है घर में माशाल्लाह से काफ़ी चहल पहल में. सो अज़ीज़ और दिलावर को भी मेरा ख़ास सलाम. कैसे हैं आप लोग? और रोमा एंड रुबीना को भी मेरा ख़ास सलाम. सो ऑल इज़ डन. नाउ वी आर बैक टू आलू ग्रेवी विद बॉयल राइस. बॉयल राइस पहले से हुई है. ज़रा सुबह सुबह नाज़रीन एक निवाला चेक कर लिया जाए कि भाई कैसा बना है. वाह, बिस्मिल्लाह. माशाल्लाह, क्या वाह, क्या बात है. वेरी नाइस. मैं परसों से जब से ये ज़लज़ला है, मैं बार बार जब मैं जा रही होती हूँ मुझे एक विजुअल्स आते हैं, फिर मैं जब कुछ खा रही होती हूँ तो 1 करोड़ मरतबा मैं दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रही होती हूँ कि देखें सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, सब A1 है. शुक्र अदा रोज़ करें. इस वक़्त अल्लाह ताला हमसे इतने कोई खुश नहीं है इंसानों से. दुनिया में जो इंसान कर रहे हैं उससे इतने कोई खुश नज़र नहीं आते. तो इसलिए हर चीज़ जो आपके पास है उसका शुक्र अदा करें. किल किल पिल पिल टिल टिल मत करें छोटी छोटी बातों पे. ये उसने कह दिया, फलाना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मत किया करें. इससे बेबरकती होती है. अच्छा, अब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं, उसके बाद क्विक से कॉल ले लेते हैं. आलू ऑब्वियसली इसके लिए चाहिए, आधा 1 किलो के बराबर आलू हैं. टमाटर जो है 3 से 4 अदद बारीक चॉप किए हुए हैं. दही हम डालेंगे इसमें 1 से 2 टेबल स्पून और बाकी का हम रायता बना लेंगे. हरी मिर्चें, ये कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं है, कुटा हुआ है. 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर जाएगा, हस्बे जायका नमक. 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर और सफ़ेद साबुत ज़ीरा. मेरा फेवरेट स्पाइस जो है वो ये है. और 2 अदद प्याज हैं. प्याज हम ऐसा करेंगे इसमें डाल देंगे. 2 अदद प्याज है. लहसुन अदरक कुटा हुआ ये शामिल कर दिया. और आधा कप के बराबर इसमें तेल डालेंगे. अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आधा कप के बराबर तेल है. ये हमने डाल दिया और
कोशिश करें जो भी चीज़ हो उसको आपने बराबर डालना है इसमें. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रही हैं? सानिया. फौजिया? सानिया. सोनिया? सनिया? सानिया. सानिया जी. कैसी हैं सानिया? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ. क्या कहना चाहेंगी सानिया? मैं आपका शो मैं बहुत शौक से देखती हूँ. अच्छा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका. एक और डिज़ाइन बनाते चिकन हैं. सूप बनाना सिखाएंगी? क्या? चिकन सूप. चिकन कॉर्न सूप के चिकन हॉट एंड सावर? चिकन सूप. चिकन सूप खाली? जी हाँ. चिकन सूप. अच्छा, एक सरगोदा. मतलब उसके अंदर कुछ डालना है कि खाली चिकन सूप? अंडे वाला. अंडे वाला. ओके, चिकन सूप. तो चिकन कॉर्न ही हो गया ना, चिकन कॉर्न सूप. कल बनाएं आपके लिए? सरगोदा से आप कर रही हैं, ठीक है. कल आपके लिए, कल आप बता दें. ये बताएं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो जजीरा यानी आइलैंड है वो कौन सा है? मैं नहीं जानती. बेटा आप पढ़ती हैं? जी हाँ. किस क्लास में? 8th क्लास. 8th क्लास में पढ़ती हैं? जी. किस स्कूल में? बेटे ओए, चली गई आप. खैर, मैं कोशिश करूंगी कल नहीं तो परसों इंशाल्लाह सूप बनाएंगे आपके लिए. अब मैं इसमें से चीज़ें कुछ ढूंढ रही हूँ. हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा हरा धनिया. मैंने अपनी बास्केट जो है करीब रख ली है, वरना मुझे उचक उचक के उठानी पड़ती थी. सो आते हैं वापस. सब्ज़ी चीज़ें महंगी क्या, ये देखें अभी तक सब्जियां बहुत अच्छी हैं. अभी तक सर्दी बस जा ही रही है बेचारी. दिन में जैसी धूप निकलती है तो लगता है गर्मियां शुरू हो गई हैं, और उसके बाद रात को जो ठंड शुरू होती है. ये क्या है? वाह, हमारी टोकरी आ चुकी है. नहीं सॉरी, ये टोकरी नहीं है नाज़रीन, ये है खूबसूरत. ये देखें ज़रा. अच्छा, वाई डोंट, ये हम क्यों नहीं इस्तेमाल करते? ये जो चुकंदर है ना, ये उसकी डंडियाँ हैं मेरे ख्याल में. ये हाँ बन तो सकते हैं. चेक करते हैं, आज डाल के देखते हैं नाज़रीन. कोई ऐसा नहीं है कि जहरीले थोड़ी होंगे ये. डाल के देखते हैं कि कैसे बनेंगे. थोड़े से डालती हूँ, लेट मी चेक. मैं आजकल ये जो जिस तरह मूली के पत्ते हैं उनको भी मैंने किया तो वो बड़े मज़े के आए. तो इसको भी चेक कर लेते हैं. धुले में हैं बिल्कुल. देखिए बिल्कुल स्टिक्स लग रही हैं, पिंक कलर की स्टिक्स. अच्छा, अब इसको देख लेते हैं. साथ में आप लोग कॉल कर सकते हैं 051-410-2357 पे. आज का सवाल है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जजीरा जो है वो कौन सा है. अच्छा, इसको जैसे ही हमने गुलाबी करना है, लहसुन अदरक और प्याज को, और गुलाबी के फ़ौरन बाद इसमें हम टमाटर डाल देंगे, क्योंकि हमने ग्रेवी एक्चुअली ब्लेंड करने थे टमाटर, लेकिन हम सॉरी मैं अपना ब्लेंडर लाना भूल गई, तो इस वजह से ब्लेंड नहीं होगा, लेकिन हम इसकी अच्छी सी ग्रेवी ऑटोमेटिकली बन जाएगी. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कौन बात कर रहे हैं? जी नासिर बात कर लाहौर से. नासिर साहब फ्रॉम लाहौर. कैसे हैं नासिर साहब? ठीक ठाक हैं? हरी मिर्चें डाल रहे हैं. अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी. जी जी, फरमाइए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं सवाल का जवाब देना चाह रहा था. जी जी दें. ये बलूचिस्तान में बलूचिस्तान में हाँ जी, स्टोला. स्टोला आइलैंड जो है. ओके, हाँ जी, स्टोला. ठीक है, स्टोला आइलैंड. तो और ठीक है, आपकी आई थिंक फरमाइश थी कोई, मैंने पिछले दिनों पूरी की थी, मुझे याद आ रहा है. हाँ, आपने एक फरमाइश पूरी की थी, 2 बताई थी, एक आपने पूरी कर दी थी, फिर एक आपने नहीं पूरी की थी. दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी वो बुखारी राइस थे. अफगानी राइस. अफगानी पुलाव बोला था. नासिर फ्रॉम लाहौर. ओके, मैं लिख लेती हूँ. अफगानी पुलाव बोला था. अफगानी का ये लोग बुखारी भी कहते हैं उसे. सॉरी नासिर साहब, थोड़ा फोन से मुंह दूर करके बोलें, वो पुफ पुफ हो रहा है बहुत. हाँ जी, बुखारी राइस बोले थे. बुखारी राइस. बुखारी राइस. जी जी जी, यानी रोज बुखारी, ये काबुली पुलाव भी कहते हैं उसे. हाँ अच्छा, बुखारी. ओके, ठीक है, अफगानी राइस. ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि इस हफ्ते अगर नहीं हो सका तो अगले हफ्ते आपकी जो है फरमाइश को दिमाग में रखूँ. ठीक है ना? बड़ी बड़ी मेहरबानी. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच नासिर साहब, थैंक्स अ लॉट. ओके नाज़रीन, इसमें अब थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ. बिल्कुल ना छोड़ें, बिल्कुल ना छोड़ा करें. जैसे ही मैंने छोड़ा तो वो सुनहरे के बजाय थोड़े से ब्राउन हो गए.
آپ نے جیسے ہی ایسا ہو نا فوراً پانی تھوڑا سا ڈالنا ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پیاز پھر جلتے نہیں ہیں. یہ دیکھیں کتنی پیاری گریوی. آپ اتنے دور چلے گئے سجاد. ناؤ یو کین سی. یہ دیکھ لیں. اب اس کی جو صورتحال ہے, اس صورتحال میں ہم ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹماٹر. 2 سے 3 عدد ٹماٹر ہیں. اور اسی میں تھوڑا سا مسالے کی باری ہے. 1 ٹی اسپون لال مرچ پاؤڈر. اس میں دیگی لال مرچ اگر آپ ڈالیں نا کلر کے لیے تو اس کی جو کری ہے یعنی اس کا سالن ہے اس کا بڑا اچھا کلر ہوگا. 1 ٹی اسپون دھنیا پاؤڈر ساتھ ساتھ ادھر رکھتی جاتی ہو. 1 ٹی اسپون ثابت سفید زیرہ, اگر بھنا ہوا ہو تو بہت اچھا ہے, ورنہ ایسے بھی چلے گا, ایسے بھی چلے گا. آدھی ٹی اسپون اس میں ڈال رہے ہیں ہم لوگ. 1 میں نے کہا تھا لیکن ہلدی کیونکہ بہت اوور پاورنگ فلیور ہوتا ہے اس کا, تو آدھی ٹی اسپون ڈالیں. اوکے. اور اس میں حسب ذائقہ ہم نمک شامل کر رہے ہیں 1 ٹی اسپون. ناظرین آئی ایم سو سوری, آپ کو ادھر سے دکھاتی ہوں, ادھر والا دیکھیں ذرا حصہ. کوئی بات نہیں, ہمارے کیمرہ مین ہے, کوئی ایسی بات نہیں, ادھر آ جائیں. یہ دیکھیں ادھر آ گئی میں. آئی ایم سوری, میں فون کی ممی کا فون ہے. السلام علیکم ماما. اچھا ماما 1 سیکنڈ بتائیں کیا کہہ رہی ہیں. یہ جو تم وہ چقندر کی ڈالو گی تو تمہاری ہانڈی لال ہو جائے گی. ہانڈی لال ہو جائے گی, اس لیے میں نے فون کیا. اچھا ماما دیکھیں میں ابھی آپ آن اسکرین سارے آپ کی آواز سن رہے ہیں, ہانڈی لال ہو جائے گی تو پھر دیگی لال مرچ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں نا. کیا آپ بھی سن رہی ہیں ساتھ ساتھ. ویری بیڈ مدر, ویری بیڈ, ویری بیڈ. اچھا ماں جی لو یو, خدا حافظ, بائے 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 بائے. اپنی آواز ممی خود سن رہی ہیں. ویری نائس. یہ بڑا اچھا ہو گیا. اس کا مطلب ہے ان ڈنٹھیوں کو جب ہم ڈالیں گے تو ہانڈی خود ہی لال ہو جائے گی. چلو یہ ڈالتے ہیں دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ میں جو آپ پھینک دیتے ہیں نا اس کو ہم ڈالتے ہیں کاٹ کے اس میں, اور یہ لال لال خوبصورت ہانڈی ہو جائے گی آپ کی. یہ ہاں ویسے صحیح کہہ رہی ہیں ممی, مدر از رائٹ. ہاں جی ایکسپیرینس کا کوئی مل نہیں. یہ دیکھیں یہ ساتھ ساتھ ہی یہ بھی گل جائیں گے. پتہ نہیں ہم کیوں پھینک دیتے ہیں. مطلب میرا کہنے کا مقصد یہ کچھ بھی نہ پھینکیں, تیلے ڈنڈے سارے کھا لیں آج کل کیونکہ مہنگائی کا دور ہے. یہ بھی ڈنڈیاں ڈال دیتے ہیں. یہ دیکھیں. ہیلو السلام علیکم. آئے ہائے نہیں یہ لال نہیں ہے, یہ پھینک ہی دیتے ہیں ناظرین, سوری. یہ دیکھیں کتنے پیارے پتے ہیں چقندر کے. چلو یہ ڈال دیتے ہیں ناظرین. ٹھیک ہے, آلو چقندر گریوی, آلو چقندر کے پتے کی گریوی. یہ دیکھیں یہ میں ساتھ ہی ڈال رہی ہوں. یہ دیکھیں اتنے پیارے پتوں کو میں کیسے پھینک سکتی ہوں. نو وے. 2-4 اور ڈال دیتے ہیں, سارے ہی ڈال دیتے ہیں, سالن بھی زیادہ ہو جائے گا ناظرین, پھر ہماری لڑائی نہیں ہوگی کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں سالن کم ہو کون پہلے لے رہا ہے. اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ساتھ ہی کاٹ دیے میں نے. اس کو استعمال, یہ بالکل دھلے ہوئے پڑے تھے تو میں نے کہا اس کو بھی استعمال کرتے ہیں. آلو ڈالیں گے تو خوبصورت ہو جائے گی بات. کال کر سکتے ہیں آپ. آج کا سوال ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا جزیرہ یعنی آئلینڈ کون سا ہے. یہ دیکھیں I'm sorry میں کٹنگ بورڈ پہ نہیں کر رہی, میں گھریلو خواتین کی طرح. یہ دیکھیں اب دیکھیں. ویسے اماں جی آپ بالکل رائٹ تھیں. اٹ از لال لال خوبصورت. اب اس میں ہم آلو ڈال دیں گے. 10 منٹ پہلے آلو کیوں ڈالوں میں. یہ دیکھیں ناظرین اسی میں تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈال رہی ہوں. بیوٹیفل, اٹ از مائنڈ بلوئنگ. اچھا جی ہری مرچیں میں ثابت بھی ڈال رہی ہوں, اس میں کٹی ہوئی بھی ڈالی تھی, یہ ہم نے ثابت بھی ڈال دیں. یہ لیں ثابت ڈال دی. 1 چٹکی اس میں چینی کی بھی ڈال رہی ہوں, کیونکہ چینی جب بھی آپ 1 ٹی اسپون یا شکر ڈالتے ہیں آدھی چٹکی تو سالن بڑا مزے کا ہو جاتا ہے. یہ خوبصورت بات ہو گئی. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جی. ہیلو ہیں یہ بچے اپنا نمبر تو بتا دیں, ذاتی نمبر. کیا کہہ رہے ہیں. ذاتی چینل نمبر. چینل کا نمبر غلط بات بولیے.
अस्सलाम वालेकुम। गुलदाद भाई की लगता है नाज़रीन, गुलदाद भाई आजकल ना बहके बहके से होते जा रहे हैं। व्हाट इज द रीजन? इज इट टू मच वर्क? ज़्यादा काम अगर आप कर लें ना तो आपका दिमाग जो है वो ज़्यादा अच्छा चलता है। ये देखें नाज़रीन क्या खूबसूरत। ये तो अगर आलू ना भी डालें ना तो भी आप इसकी भुजिया बना लें चुकंदर के पत्तों की, और साथ में डंडियाँ भी डाल दें। इतनी खूबसूरत कलर माशाल्लाह आया है। अब हम इसमें डाल देंगे आलू। ये खूबसूरत आलूओं का कलर, अब कलर का सही पता चलेगा। उफ माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह इट इज ब्यूटी ब्यूटी। ये देखें नाज़रीन, चेक करें इस अगर कच्चे अगर खाने को दिल चाह रहा है, कोई रह गए हैं पत्ते, मूली के भी पत्ते डाल देते हैं। ये नाज़रीन देखें धुले हुए पत्ते हैं, मूली के भी पत्ते डाल देती हूँ। मूली चुकंदर सारों के पत्ते, ये देखें ये भी डालते हैं। थोड़ा सा मसाला अब कम हो गया, मसाला थोड़ा सा और डालती हूँ। आधा टीस्पून इसमें लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक, क्योंकि मैंने चीज़ें ज़्यादा ऐड की हैं। उफ़ नाज़रीन मैं बता नहीं सकती आपको इस वक्त जो हालात हैं इस किचन के। और कुछ रह गया? नहीं, हो गया। एक लीमू भी ऊपर निचोड़ दें, लेकिन प्लीज़ वो दाने निकाल दें। ये और साथ में लीमू डाल दिया, छिलका भी। इट इज़ माइंड ब्लोइंग। ये देखें, और साथ में छिलके को आप थोड़ा सा तोड़ें, छिलका भी खा लें। छिलका बहुत अच्छा होता है, आधा मैं खा लेती हूँ मेरे ख्याल में। वाह ओके। अब देखें नाज़रीन इसकी खुशबू और इसकी, वाह 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 वाह। एक्सपेरिमेंट किया करें किचन में। इसमें 2 टेबल स्पून हम डाल रहे हैं दही के, 3 डाल देते हैं चले। ये क्योंकि चीज़ें मूली के भी पत्ते डाल दिए हैं तो अब आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और हस्बे जायका आधे से भी कम नमक। नाउ वी आर गोइंग टू, मेरी घड़ी बंद हो गई है। ओ माय गॉड नाज़रीन, मेरी घड़ी बंद हुई भी है। वो कह रहे फेंको, गैस की घड़ी है, फेंको। अच्छा नाज़रीन, अब हमने इसमें शामिल कर देना है पानी। पहली दफ़ा हुई है नाज़रीन, 13 साल में ये घड़ी बंद हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अब आपने इतना पानी डाल देना कि ये गले आलू, क्योंकि आलू काफ़ी माशाल्लाह मोटे ताज़े आलू हैं तो उनको गलने में ब्यूटीफुल, क्या मज़ेदार बनेगा। और सफ़ेद चावलों के साथ इचड़ कीचड़ कीचड़ ठिशम, मज़ा आ जाएगा। अब हमने इसकी आंच जो है दरमियानी रखनी है आपने, पकता रहेगा आराम से। सफ़ेद चावल हमारे बॉयल हुए में, आलू ग्रेवी विद बॉयल राइस। अब मैंने लिखना था कि आलू, ये मूली के पत्ते और इसके चुकंदर के पत्तों का सालन। आहा वाह ज़बरदस्त। अब चल के देखते हैं जो टाइम को बता देगा मुझे क्या है। एक हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अभी बहुत टाइम है। कैसे हैं आप? कौन बात कर रहे हैं? जी मतीउल्लाह बात कर रहा हूँ। मतीउल्लाह साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं कैसी हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक। जी आपका शो मेरी पूरी फैमिली देखती है बड़े शौक से। थैंक यू जी मतीउल्लाह साहब, एबटाबाद से बोल रहे हैं आप? जी 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 थैंक यू सो मच। आपकी फैमिली को भी मेरा ख़ास सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। जी जी जी। मेरी सिस्टर है, वो आपका शो बहुत शौक से देखती हैं। अच्छा थैंक यू सो मच। सो ये बताइए मुझे मतीउल्लाह साहब कि आप फर्स्ट टाइम कॉल कर रहे हैं? जी मैं फर्स्ट टाइम कॉल कर रहा हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? अब आपके शो में कॉल मिली है तो क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, आपका शो बहुत प्यारा है और आप जो खाने भी बहुत अच्छे पकाती हैं। क्या करूं बस। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बस यही कहना। अच्छा सुनिए, सबसे बड़ा जो आइलैंड है यानी जजीरा पाकिस्तान में वो कौन सा है? सबसे बड़ा आइलैंड जजीरा पाकिस्तान में? जी जी पाकिस्तान में हैं जजीरे। जी 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 बिल्कुल। बताइए।
पाकिस्तान का सबसे बड़ा जजीरा इसका मेरे ख्याल में कहाँ नहीं है? पता नहीं पता? जी। कोई बात नहीं, आज आपको पता लगेगा, आज उसकी आपको डिटेल रिपोर्ट भी दिखाएंगे, ठीक है ना? पूरा प्रोग्राम आपने देखना है इसी बहाने, जी इंशाल्लाह। ठीक है ना? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मतीउल्ला। एक हमारे ट्विटर पे है मतीउल्ला जान साहब भी हैं, वो काफ़ी पढ़ती रहती हैं उनको इधर उधर से। उफ, अब देखे नाज़रीन, इसमें बॉयल क्यों नहीं आ रहा भाई? आएगा आएगा इंशाल्लाह बॉयल। मैंने ठंडा पानी, वैसे मैंने, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं था, ठंडा पानी मैंने डाला है, लेकिन आप लोग जब पका रहे हो तो एक सॉस पैन में उबलता हुआ पानी जब आप सालन में डालते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी बनता है और आपकी गैस भी कम खर्च होती है। तो इसलिए ये मेरी एक मिस्टेक थी, जो कि मैं इसको अब आइंदा जो है जब भी सालन वाली कोई चीज़ बनाऊंगी तो मैं साथ में सॉस पैन रखूँगी, ताकि बॉइलिंग पानी होगा तो उसमें चीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छी है। अब नाज़रीन थोड़ी आपको गपशप सुनाऊँ कल के हवाले से। मैं आपको बताऊं, कल एक मेकअप क्लास थी मैडम आसफा की इन वाकेंट, और उधर मेरा जाना हुआ वाकेंट, और वहाँ पे लेडीज़ की मेकअप क्लास थी, और वहाँ पे जितनी लेडीज़ आई हुई थी गिरदो नवाह से भी, वो सारी जो है वो शो देखती हैं और बड़ा उनको पसंद है। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कल अच्छा शील्ड्स दी, बड़ा अच्छे मेकअप क्लास थी। एक कंपनी है क्रिस्टीन, जिसकी मैं भी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, तो उनकी मेकअप क्लास थी, मास्टर मेकअप क्लास, तो बड़ा अच्छा लगा। फिर वापसी पे जीटी रोड जो पुरानी जीटी रोड है ना, जो उसका मज़ा ही कुछ और है। तो जैसे ही वहाँ से उन्होंने कहा नहीं आपने चाय पीनी है, तो एक क्रीमी रेस्टोरेंट है ऑन मेन जीटी रोड, उधर चाय पी, इतना प्यारा माहौल था। वो अंदर बैठते हैं कह रहे थे माफ़ कीजिएगा, मैंने कहा नहीं बाहर बैठते हैं, वरना थोड़े दिन बाद तो बाहर बैठ ही नहीं सकेंगे। तो जितनी ख़वातीन थी बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी तस्वीरें खींची कल। मैं मेरे ख्याल अब सेल्फ़ी एक्सपर्ट हो गई हूँ ऐसे खींच के, तो अच्छा लगा। और जब आप पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों में जाते हैं और वहाँ के लोगों से मिलते हैं तो इट्स अ टोटली डिफरेंट फीलिंग। तो बड़ा अच्छा लगा। सारे कहते हैं आपका हम K2 TV पे प्रोग्राम जो मॉर्निंग शो है वो देखते हैं, तो आप लोग भी इसी तरह जो मोहब्बत प्यार देते हैं। आई एम रियली ओवरवेल्म। मेरी कोशिश होती है कि प्रोग्राम में मजाक गपशप के साथ साथ कोई अवेयरनेस भी हो। तो चल के अब देखते हैं जो आबदा परवीन जी की आवाज़ में कलाम, उसके बाद चले जाएंगे हम ब्रेक के ऊपर। पहली दफ़ा नाज़रीन घड़ी में देख रही हूँ 10 बजने में 10 मिनट हो गया। तो चल के उसके बाद एक वक्फे पे जाएंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ जी नाज़रीन खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं। जो मेरी दोनों बहुत ही एक्सट्रीमली टैलेंटेड ख़वातीन हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो मेहमान हैं आज। तो सबसे पहले मैं तारुफ़ कराना चाहूँगी, एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और जब भी कोई क्रिकेट के हवाले से यहाँ पे मैचेस होते हैं तो ये आगे आगे सर फहरिस्त होती हैं। क्रिकेट की बहुत बड़ी मद्दाह होने के साथ साथ उसको कवर भी करती हैं, और मैं इनकी जो इंस्टाग्राम है और फेसबुक है उस पर देखती रहती हूँ। तो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं बहुत ही प्यारी एंड टैलेंटेड सी बख्तावर महमूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? कैसी हैं? ठीक ठाक। आई लव द इंट्रोडक्शन बाय द वे। ये थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि पहले बड़ा पॉलिटिकल होता था, आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने कहा कि ज्यादा बेहतर है क्रिकेट वाली साइड पे चले जाए। मैं देखती हूँ पॉजिटिविटी भी बड़ी अच्छी आ रही है इसमें। पॉलिटिकल भी आपका एक स्टांस है? पॉलिटिकल स्टांस था, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारा कंटेंट उसके अराउंड स्टार्ट किया, फिर थोड़ी सी सोचा कि अब जरा सी डोमेन चेंज करते हैं, बिकॉज आई वाज ऑलवेज फाउंड ऑफ क्रिकेट। तो ये एक चीज़ ऐसी लगी जिसके अंदर एक मकसद बड़ा अच्छा आ रहा था, उसमें नेक मकसद था। वी वर ट्राइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, एंड क्रिकेट हर पाकिस्तानी का एक बड़ा पैशन होता है। तो मैंने कहा कि ये भी एक डोमेन को चेक किया जा सकता है, एंड आई एंजॉयड वर्किंग अराउंड सच पीपल। और बहुत सारे लेजेंडरी क्रिकेटर्स भी होते हैं आसपास, तो मज़ा भी आता है, बचपन का ख्वाब भी पूरा हो रहा है और साथ साथ फ्यूचर की भी चाहते हैं। नहीं, इट्स ग्रेट टू हैव यू वंस अगेन। आप पहले भी आई थिंक काफी अर्सा पहले आप ऑलमोस्ट एक साल पहले आई थी, सो वेलकम वंस अगेन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगली जो मेरी मेहमान है नाज़रीन, वो भी बहुत टैलेंटेड हैं, अपनी फील्ड में काम कर रही हैं, और बड़ा अच्छा लगता है ख़वातीन को मुख्तलिफ शोबों में आगे आगे काम करते देख के। सो जर्नलिस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स स्पीकर हैं, एंड साथ में इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत ही प्यारी सी टैलेंटेड सी नबिया शाहिद। अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much. I love the introduction as well. थैंक यू सो Thank मच you फॉर so कमिंग। much सुबह for सुबह उठ having me on जाती the हैं? show. नहीं क्योंकि जाहिर है हम लोगों का काम इस तरह का है कि हम लोग थोड़ा
काफी लेट नाइट तक हम लोग जागते रहते हैं, वी हैव टू कीप एन आई ऑन ऑल द स्टोरीज, तो हम लोग स्टोरीज वगैरह देखते रहते हैं और फिर सुबह को जाके हम लोग सोते हैं। लेकिन आज क्योंकि आपका शो था तो आई कुडंट मिस आउट ऑन द बिल्कुल नहीं लग रहा आप रात को जाग रही होती नहीं, हम दोनों आई थिंक अभी ये डिस्कस कर रहे थे, वी बोथ आर नॉट मॉर्निंग पीपल, बट इट वाज फॉर योर शो, तो हमने कहा कि जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और आज आप खा के भी जाएंगे, टेस्ट भी कराऊंगी। आज मैंने एक्सपेरिमेंट मैंने भी किया है। अच्छा। मैंने मूली और चुकंदर के पत्ते भी डाल दिए हैं। ये एक नई डिश हो गई एक नई डिश आलू के साथ साथ। वेरी नाइस। सो नबिया, यू आर इन्फ्लुएंसर, साथ में मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और ह्यूमन राइट्स के लिए भी काम करती हैं। इतने सारी चीज़ों में आपका अपना फेवरेट डोमेन कौन सा है? आई थिंक 3 में से अगर मैं कहूँ कि उसको करें, अगर टॉप 3 फेवरेट। मुझे तीनों ही बहुत पसंद है। तीनों? मेरे तीनों ही पैशन है। अच्छा। क्योंकि मुझे ह्यूमन राइट्स के लिए काम करना भी पसंद है, मुझे मोटिवेशनल बात करना भी पसंद है। आई लाइक व्हेन टू पीपल कैन हैव अ डीप कॉन्वर्सेशन। मुझे आजकल सोसाइटी में ये चीज़ का एक बहुत ज़्यादा डिप्रिवेशन लगता है कि हम लोग डीप कॉन्वर्सेशंस नहीं कर पाते एक दूसरे से, सुपरफिशियल रहते हैं, सुपरफिशियल रहते हैं, आर्टिफिशियल रहते हैं, क्योंकि हम लोगों को डर इतना ज़्यादा है कि कोई जज कर लेगा, इसको ये नहीं दिखाना, इसको वो नहीं करना, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हम बहुत सी खुशियों से महरूम रहते हैं। बिल्कुल। जब तक आप इंसान के सामने एक सही डीप, मतलब जो आपका रियल फेस है वो नहीं दिखाएंगे, यू कैन नॉट हैव अ ट्रू फ्रेंडशिप और अ ट्रू रिलेशनशिप विद दैट। तो मे बी आई ट्राई, मैं अपनी बातों से यही कोशिश करती हूँ कि लाइफ बहुत सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेट मत करो, आराम से ज़िंदगी जियो, चिल करके ज़िंदगी जियो एंड जस्ट स्टे हैप्पी एंड कीप पीपल हैप्पी, दैट्स इट। तो मेरा ये एक तो बेसिकली वो जो कॉन्वर्सेशन में बैरियर्स है उनको ब्रेक करना जरूरी होता है। ब्रेक करना हम लोग बहुत मेरे जरूरी ख्याल है। में, मुझे लगता है कि ब्यूटी में, मेकअप में और उसी में पड़े रहते हैं। अभी आई थिंक दिस वाज अगेन द सेम टॉपिक जो हम सोच रहे थे कि इतना एक आर्टिफिशियल परसेप्शन, स्पेशली अगर फीमेल्स को लेके कि आपकी अपीयरेंस कैसी है, आपकी स्किन कैसी है, आपका मेकअप कैसा है, एंड देन देयर इज द सेकंड थिंग कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं, आप किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं। जो फोकस होना चाहिए था कि जी पहले बात क्या की जा रही है और कैसे की जा रही है, उससे हट के आप फिजिकल अपीयरेंस पे आते हो एंड देन यू गेट पीपल्स अटेंशन एंड देन यू आर एट अ पॉइंट कि आप अपनी बात कम्युनिकेट कर सको। देखिए, मुझे कभी कभी लगता है कि ये जो स्किन के हवाले से खवातीन अब ज्यादा इसमें है, मेरे ख्याल मर्द हजरात पीछे चले गए हैं, उनको अपीयरेंस का इतना नहीं होता जितना खवातीन को है कि जो भी आपसे खातून मिलती हैं वो कहती हैं अच्छा स्किन के बारे में बता दें। इसके अलावा मैं कहती हूँ कोई और भी क्वेश्चन, या आप दुबली हो गई हैं कैसे बता दें, इंटरनल इनसिक्योरिटीज हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जहाँ पे हमने खुद को एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया, हमें वो पता ही नहीं है कि ये भी एक ऐसा गोल है जिसको परस्यू करें तो प्रोबेबली हमारी एक जो आइडेंटिफिकेशन है या जो हमारी आइडेंटिटी है वो ज्यादा अच्छे तरीके से इवॉल्व हो सकती है। सो हम लोग अभी छोटी छोटी चीज़ों पे कि जी अच्छा खूबसूरत दिखना चाहिए, प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए, ऑब्वियसली दैट्स पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, बट फेकिंग एन इमेज कि आप उस जैसे दिखें, खूबसूरत दिखें, या फिर जो आपकी स्किन नहीं है उससे डिफरेंट होके दिखें, एंड देन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द रियल लाइफ गोल्स इज समथिंग जिसके ऊपर अभी हमें काम कर लेना चाहिए बिफोर इट्स टू लेट। बिफोर इट्स टू लेट। एक्चुअली हमारे, आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, एक्चुअली हमारी सोसाइटी का ना एक रोल बना हुआ है, लड़की को ये दिखना है, इफ she matches that तो वो acceptable है, if she doesn't match that तो वो acceptable नहीं है, and everybody wants to be accepted, everybody wants to be loved, cared, सबको उस वहाँ पे preconceived notion पे आना ही आना है। अब वहाँ पे आने की इतनी ज़्यादा झंझट है, खूबसूरती है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छे कपड़े के लिए ब्रांडेड कपड़े हैं, ये भी एक है कि अगर आपने अच्छा देख लिया तो आपने ब्रांडेड कपड़ा पहनना है, अगर आप दूसरा कपड़ा पहन रहे हैं यू आर नॉट एक्सेप्टेड, नो शी इज नॉट अ गुड गर्ल, नो। मतलब ये कि बेशक उसका वो कितनी इंटेलिजेंट है या वो है, वो सब चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं, हम नाकिस हैं, हम उस चीज से आगे देख ही नहीं पाते, उसका इंटेलेक्ट नहीं देख पाते, उसका परसेप्शंस नहीं देख पाते, हम लोग कर ही नहीं पाते हैं वो। ये एक ज़माने में होता था, मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, ये 2000 से आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आने शुरू हुए, और एवरी ईयर मैं सोचती थी कि यार सोशली अब आप बड़े बोर होते हैं लोगों के साथ बैठ के, बिकॉज एक तो आहिस्ता आहिस्ता फ़ोन्स आने शुरू हो गए कि आप एक महफिल में बैठे हुए हैं, सारे फोन में घुसे में, सोशली डिस्कनेक्ट आ चुका हुआ है। मतलब दूसरी बात ये कि आप इतना तैयार हो कि अगर अपना टाइम जिंदगी का निकाल के किसी से मिलने जाते हैं तो वो फोन में घुसा है। एक्चुअली फोकस ये होता है कि हम लोग इतना टाइम लगा के तैयार होते हैं तो हम कहते हैं कि पहले हम पिक्चर्स ले लें, सोशल मीडिया को बता दें कि हम लोग आज यहाँ पहुंच रहे हैं, हम यहाँ पहुंच रहे हैं, सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं।
اب انسٹاگرام تو اب زیادہ ان ہوا ہے نا, ایک زمانے میں فیس بک ہوتا تھا, ناؤ لوکیشن ان پارلر, چیک ان یہاں پہ ادھر with 100 others. Yes, with 100 others. تو یہ کہ وہ میں دیکھتی تھی یار اتنی زیادہ سوشل انفارمیشنز چاہیے ہوتی ہیں لوگوں کو. مجھے لگتا تھا کہ سیکیورٹی وائز بھی اچھا نہیں ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ اس پارلر میں, ادھر سے اٹھے آپ اس ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے. ایک میری دوست تھی, میں اس کو یہی دیکھتی رہتی سارا دن, میں ادھر ہوں, تو پھر یہ بھی کوئی لوکیشن ٹوائلٹ کی بھی ہونی چاہیے تھی کہ اب میں ٹوائلٹ میں ہوں. شکر ابھی تک ہم لوگ اس جگہ تک پہنچے نہیں ہیں, لیکن مجھے تو نہیں لگتا انسٹاگرام کہ شروع ہو گیا. ہاں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہم بہت دور ہیں. ہم یہ بھی شروع کر دیں گے, ویئر ان دا ٹوائلٹ, ویئر ڈوئنگ دس, ویئر ڈوئنگ دیٹ, ہم پہنچ جائیں گے. اچھا, آپ اپنے پرسنل میٹرز انسٹاگرام پہ لاتے ہیں خود ہی سے کہ جی میرا بریک اپ ہو گیا ہے, میری سپریشن ہو گئی ہے, بٹ پلیز رسپیکٹ آور پرائیویسی. یہ اس پہ ایک Actually, the problem I believe is کہ social connectivity میں because there is a lot of competition. اگر نبیہ ہم دونوں ہیں, ہم دیکھیں گے اس کے فالوورز زیادہ ہو رہے ہیں, میرے فالوورز کم ہو رہے ہیں, اب میں کیا پبلسٹی اسٹارٹ کر سکتی ہوں, because a lot of people who want کہ ان کی پرائیویسی انویڈ ہو, وہ تھوڑا سا ایکسپوز بھی کرتے ہیں. اگر کوئی اس چیز کو پرسنل رکھنا چاہتے ہیں they can, but the problem is کہ کام کو آپ کس حد تک آگے لے کے جا سکتے ہیں. کچھ لوگوں کو obviously اپنی فٹنس روٹین دکھانی پڑتی ہے so that people get to know کہ اچھا یہ پرسنل لائف میں ایسے ہیں, اور ریئل لائف موٹیویشنز چاہیے ہوتے ہیں تو ریئل لائف اسٹوریز بھی چاہیے ہوتے ہیں. obviously not everyone is fake, بہت سے لوگ جو ہیں وہ اچھے طریقے سے ایک لائف اسٹائل گزار رہے ہیں, they trying to depict a positive thing جو کہ یو جس سے انسپریشن لے سکتی ہے. بٹ unfortunately اگر میں اسپیشلی لڑکیوں کی بات کروں تو تھوڑا سا ہمارے گولز کا ایشو ہے, ہمارے جو گول اورینٹیشن ہے وہ بڑی بری ہو چکی ہے. ہمارا فوکس یہی ہے کہ صبح اٹھ کے فریش ہو کے ہم نے ایک امیج دکھانا ہے دیٹ وی آر لکنگ گڈ, وی آر لکنگ پازیٹیو, ہر وقت ہم خوش ہیں, which is such a wrong perception which I do not understand کہ کیوں ایک دم سے ہو گیا. everyone just talking about کہ اٹھو, خوش رہو, پازیٹیو رہو. that is not possible at all. آپ 24 گھنٹے کیسے پازیٹیو رہ سکتے ہیں اور کیسے آپ ہر چیز انجوائے کر سکتے ہیں, آپ کو اداس ہونا پڑے گا. آئی تھنک اب سوسائٹی میں یہ ہو گیا کہ ہر انسان کے دو امیج ہیں, ایک جو وہ گھر پہ ہوتا ہے, ایک وہ جو سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے. اور جو سوشل میڈیا والا امیج ہے اس کو آگے مینٹین کرنا اتنا ایگزاسٹنگ ہو گیا ہے, اتنا تھکا دینے والا ہو گیا ہے, کیونکہ آپ نے خوش دکھنا ہے, آپ نے رچ دکھنا ہے, آپ کے لو لائف بھی فیشنیبل, آپ کے فیشنیبل بھی آپ لوگ چل رہے ہو, آپ کی لو لائف بھی بہت اچھی جا رہی ہے, اگر آپ شادی شدہ وہ بھی بہت اچھی جا رہی ہے, آپ کے بچے بھی بہت خوش ہیں, اس کو مطلب اتنی آرٹیفیشل لائف ہے کہ بندہ کہتا ہے دس از سچ اے لائی, اٹس ناٹ ایون پاسبل. یہ بھی ایک بہت زیادہ مشکل ہو گیا. دوسری بات یہ کہ آپ کسی کی گاڑی اگر کھڑی ہوئی ہے, اب پبلک کو تو نہیں پتا وہ آپ کی نہیں ہے, بی ایم ڈبلیو کھڑی ہے اس کے سامنے تو لوگ سمجھے بی ایم ڈبلیو لے لیا اس نے, بہت خوبصورت گھر ہوگا تو اس کے کمرے میں بیٹھ کے پھر وہی کمپٹیشن چلتا جائے گا اور ہم لوگ پھر سے اس ریس میں چلے پھر when you go back to your own bedroom which is not that luxurious, تو پھر آپ اس میں پڑ جاتے ہیں نا کہ اچھا لوگوں کو تو میں نے یہ دکھا دیا, رہتی میں 2 تکیے ہیں جس کے غلاف بھی نہیں بدلے ہوتے, ٹھیک ہے نا, تو ریالٹی وہاں آ جاتی ہے. یہ ایک ڈرامہ بھی آیا تھا, ایک ڈرامہ بھی آیا تھا, اس میں جب اس نے باہر لڑکے کو رشتہ آتا ہے تو اس کے لیے نا وہ ایک کارنر گھر کا بنا لیتی ہے جس میں اس سے سارے اپنے گھر کی خوبصورت چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں, اور وہ وہاں سے اسے اسکائپ پہ بات کرتی ہوتی ہے. ایک دن وہ گھر آ جاتا ہے اور یہ کیا ہے, اس کا ہر ایک کا گھر ایسے پرفیکٹ تو ہو نہیں سکتا, پرفیکٹ کارنرز جو کہ یوز کیے جا سکتے ہیں, لیکن یہ کہ بہت جگہ دفعہ میری چیزیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں, آپ کا موڈ نہیں ہوتا کرنے کا, تو آئی تھنک وہ بھی دکھانا چاہیے. اس کو کہتے ہیں انسٹاگرامیبل پکچرز کے لیے جو ہے نا, آپ کا سیٹ بھی ویسا ہو, آپ کا بیڈ روم بھی ویسا, which is not possible. آپ بیڈ پہ بیٹھے باربی ڈال کا گھر نہیں ہوتا, باربی ڈال ہاؤس. ہاں ڈال ہاؤس. بالکل. سو کمنگ بیک ٹو آپ کا سوشل ورک, کس ایریا میں آپ کام کرتے ہیں زیادہ؟ ہیومن رائٹس میں. ہیومن رائٹس میں میرا زیادہ تر جو کام ہوتا ہے وہ آف کورس میں یونیسیف کے ساتھ بھی رہی ہوں, میں ان کی پروگرام ایسوسیٹ رہی ہوں, تو میں نے چلڈرن کے اوپر بہت کام کیا ہے, ویمن امپاورمنٹ کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے, کیونکہ میں پارلیمنٹ میں بھی بیٹھتی تھی ایس ٹی جی سیکریٹریٹ میں, تو اس میں جینڈر ایکوالٹی کے اوپر ہی میں کام کرتی تھی. ویمن امپاورمنٹ کے اوپر مجھے زیادہ کام کرنا پسند ہے, اور بچوں کے رائٹس کے اوپر, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے ابھی تک یہ 2 جانراز ایسے ہیں جو کہ ڈپرائیوڈ ہیں, ان کو اتنا زیادہ وہ نہیں نوٹس کیا جاتا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ میں اس چیز کے اوپر کام کرتی ہوں, اتنا زیادہ کلیش آ جاتا ہے, تم تو فیمنسٹ ہو, وچ از ناٹ اے رانگ تھنگ.
मतलब फेमिनिस्ट होना इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग, लेकिन मुझे ये होता है कि वाई डू यू वॉन्ट टू लेबल अ पर्सन कि तुम फेमिनिस्ट हो एज अ नेगेटिव थिंग. इट्स नॉट अ नेगेटिव थिंग. मतलब मैं कहती हूँ कि अगर लड़की अपने राइट्स के लिए बोल रही है तो उसको गलत कह के कोने में मत खड़ा कर दो कि यार ये तो फेमिनिस्ट है, इसको हटाओ. तो बेसिकली आई टॉक अबाउट दोज थिंग्स. आई टॉक अबाउट थिंग्स जो कि आई लाइक टू टॉक अबाउट थिंग्स, जिसके लिए मैं अपना इंस्टा यूज़ करती हूँ, जिस पे लोग नहीं बोलना चाहते और मुझे हेट्रेड भी मिलती है. लेकिन मुझे जब मैं लड़कियों के मैसेजेस देखती हूँ कि थैंक यू फॉर गिविंग अस होप, थैंक यू फॉर डूइंग दैट, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. अच्छा, तो आपका इंस्टाग्राम हैंडल क्या है? नबिया शाहिद. ओके, नबिया शाहिद को आप फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम. और इनकी प्यारी बातें जो है, ट्रोलिंग ना करें, सुन लिया करें बातें, फौरन शुरू हो जाते हैं लोग. बहुत एक्सपीरियंस से बोल रही होती हूँ, मत किया करें ट्रोलिंग. पर ये कि फिर ट्रोलर्स भी तो है ना, मजा क्या है, सब I कुछ अच्छा take them, मतलब मुझे I take them very positively. Criticism is a part of it. और मतलब मैं कहती हूँ कि अगर एक इंसान एक काम कर रहा है, give them the freedom to do it. उसकी बात सुनो, उसकी बात नहीं सुननी है तो उसको गाली दे के मत जाओ. आजकल ये भी हमारा बहुत ज्यादा ट्रेंड, ये भी ट्रेंड स्टार्ट हो गया है कि जो लड़की, जो खातून आपको पसंद नहीं आती, आप उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करके चले जाते हो. आराम से आप एक बात लिख के चले जाते हो एंड यू डोंट नो कि उस बात से उसके घर वाले पढ़ते हैं, उसके ऊपर क्या मेंटल इफेक्ट पड़ता है. लेकिन ये ट्रोलिंग इज अ वेरी बैड थिंग और हमारी सोसाइटी के लिए बहुत डिस्ट्रक्टफुल चीज है, बहुत डिस्ट्रक्टफुल चीज है. हम लोग इसको फोर्स ही नहीं कर पा रहे हैं अभी, लेकिन this can literally destruct our society in a very slowly, mentally. Yes, that's true, in very bad ways. बिल्कुल. बख्तावर, आप भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जर्नलिस्ट भी हैं. कौन सा आपका जो शौक तो नहीं कहूँ, डोमेन आपका कौन सा फेवरेट है? टॉप 3 बताएं. अच्छा, आई नेवर वांटेड टू बिकम अ जर्नलिस्ट. ऑन स्क्रीन में आना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था. आई ऑलवेज वांटेड टू सी माई सेल्फ इन द मैनेजरियल और द लीडरशिप रोल्स, जहाँ पे मैं ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के ऊपर बड़ा काम करती थी. सो मेरी व्हेन आई वाज 26 years of age, तो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की जनरल मैनेजर बन गई. और वो जो एक मेरा एक्सपोजर मुझे वहाँ से मिला कि आई हैव टू लीड पीपल, टीम्स बनाना, उनके साथ काम करना, प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करना, ऑपरेशंस को स्मूथ करना, वो मेरी एक डोमेन बड़ी अच्छी बनी. और उसके साथ साथ देन वंस आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि ऑन स्क्रीन आओ. अब उन सब लोगों से पहले भी मुलाकातें होती रहती थी और वो जो एक आपको एक अफर्मेशंस मिलती है ना लोगों से जो बात कर रहे थे एक्सेप्टेबिलिटी की कि अच्छा आप प्राइम मिनिस्टर से भी मिली नहीं, अच्छा आप इनसे भी मिली नहीं. किस प्राइम मिनिस्टर से मिली, मैं पूछ लूं? इमरान खान से मैं 2-3 दफा उनके इंटरव्यूज किए. फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, 2-3 दफा उनके इंटरव्यूज व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू हिम. उससे पहले भी जब इंटरैक्टिव सेशंस होते थे तो काफ़ी मुलाकात करने का मौका मिलता था. और उनके रजीम में काफ़ी सारे ऐसे मिनिस्टर्स जिनको अकाउंटेबल किया जाता था सोशल मीडिया डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के सामने कि आपने जो सवाल पूछना है वी वर ओपन टू आस्क द क्वेश्चंस. सो उस पॉइंट पे मुझे एक एक्सपोजर मिला कि अच्छा दिस इज समथिंग जो कि बिल्कुल किया जा सकता है. और अभी तक डोमेन मेरी जो है आई वॉन्ट टू वर्क अराउंड द सोशल कॉन्टेंट, उस चीज़ की तरफ ज़्यादा चाहती हूँ. लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो एक मीडिया के अंदर एक डिप आ चुका है कॉन्टेंट क्रिएशन के हवाले से हो, जॉब क्रिएशन के हवाले से हो, हमें एक ट्रेंड पता चलता आ रहा है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं वो मार्केट से ख़त्म होने वाली हैं. बहुत से बच्चे जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहे हैं, मैथ्स कॉम कर रहे हैं, मीडिया साइंसेस पढ़ के आ रहे हैं, उनकी परसेप्शन ये है कि जब वो यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो मीडिया के अंदर जॉब्स ही जॉब्स है, विच इज़ नॉट द केस अनफॉर्चुनेटली. आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएंगे, आपको एक स्किल सेट डेवलप करना पड़ेगा. एंड अनफॉर्चुनेटली एंड ऑब्वियसली आई एम जस्ट सेइंग इट वेरी ऑनेस्टली एंड ब्लंटली कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना फ्रॉड हो चुका है कि उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं, मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है वो कहीं पे की नहीं जा रही. तो मैं हमेशा जब भी जिस भी स्टूडेंट से मिलती हूँ उन सबको समझाती हूँ कि अपनी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करें. डिग्री इज इंपॉर्टेंट. मेरे पास 2 गोल्ड मेडल्स हैं, 2 डिग्रीज हैं, मैंने आज तक कभी इसको यूटिलाइज नहीं किया. द स्किल्स विच आई लर्न फ्रॉम द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, लोगों से मिल के नेटवर्किंग करके उनके साथ बैठ के जो स्किल्स मैंने मार्केट से सीखी वही आज को काम आ रही हैं. तो मेरा फोकस ये कि मीडियाप्रेन्योरशिप के ऊपर लोग रुझान दें, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बनाएं, कंटेंट क्रिएट करें, लेकिन अच्छा कंटेंट क्रिएट करें.
अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये एक ट्रेंड भी है कि शुरू में जब नए प्लेटफॉर्म्स आते हैं तो लोग एकदम से जो है फजूल किस्म का कंटेंट बनाना शुरू कर देते हैं. फिर ऑब्वियसली एक सेगमेंट है सोसाइटी का जो कि इसको देखना भी चाहता है. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उस एक मेटा फेज से जो है वो निकल के अब एक ऐसे फेज में आ रहे हैं जहाँ पे अच्छा कंटेंट लोग देखना चाहते हैं और वही देखना चाहते हैं. वही देखना चाहते हैं. अटेंशन स्पैन बहुत कम होता जा रहा है हम सबका. लाइक इफ वी आर स्क्रॉलिंग डाउन इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर, अगर 13 सेकंड्स के अंदर आपने एक कंटेंट की अटेंशन नहीं ली, आपका जो व्यूअर है वो चला जाएगा. तो अब लोग कोशिश करते हैं या तो कोई पब्लिसिटी स्टंट करते हैं या फिर कोई अच्छी चीज़ बना लें कि लोग उसको देखना पसंद करते हैं. तो फोकस मेरा ये कि अच्छे कंटेंट के ऊपर काम किया जाए. और क्रिकेट इज़ माय न्यू पैशन. क्रिकेट तो मतलब बचपन से उसको फॉलो कर रही थी, लेकिन अब मौका जब मिला तो फिर मैंने कहा कि दिस इज़ समथिंग दैट आई नीड टू ट्राई. क्योंकि ऑन ग्राउंड जो एक एक्साइटमेंट का लेवल होता है एज ए क्रिकेट फ़ैन, तो मैं हमेशा चाहती थी कि ऐसा हो. लेकिन वो जो लोग जिनको मैं पहले स्क्रीन पर देख रही थी, शाहिद अफरीदी, मिसबाउल हक, हफीज़ भाई, सारों को उनके साथ फिर इंटरेक्ट करने का जब मौका मिलता है तो वो भी एक अच्छा एक फन फैक्टर डेवलप होता जा रहा है. चलो, दिस इज वेरी नाइस. स्किल का मतलब था इनका, मैं काफ़ी आपको डिटेल बता दूं, हुनर. कि आपके पास डिग्री के साथ साथ एक ऐसा हुनर भी होना चाहिए, क्योंकि आज से 5 साल के बाद मेरे ख्याल में जॉब्स जो है वो रोबोट्स कर रहे होंगे. Exactly. आपको इंसानों को रिप्लेस कर दिया जाएगा. तो आप लोग फिर कहेंगे कि अच्छा अब हम क्या करें. हम अभी तक BBA MBA के अंदर फंसे हुए. दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंसेस के ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि AI को भी समझाने के लिए लोग ही चाहिए होंगे. तो जस्ट नॉट के जॉब्स वो टेक ओवर करें, जॉब्स का एक स्विच आ रहा है. और अभी आपको ये भी बता दूं कि दुनिया में 2-3 ऐसे फास्ट फूड के ये जो आपके चेन है, इसमें आपको सिर्फ गाड़ी खड़ी करनी है, ऑर्डर देना है, अंदर कोई इंसान नहीं है. सारा कुछ डिजिटल तरीके से कंप्यूटराइज आपका खाना आ जाएगा. इसलिए ना वहाँ पे कोई आपसे पूछेगा आपका बिल कितना है या आपको वापस चेंज देगा. तो ये जब दुनिया में चेंज आ रहा है तो पाकिस्तान में भी जिस तरह सेल फोन्स थे एकदम से आ गए. हम कौन से यूज करते थे और पहले कॉल्स करते थे. तो वो एक मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको पहले से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए चेंजेस के लिए. ये ना हो कि एकदम से ये चीज आए तो आप कहें अच्छा जी अब हम क्या करें. तो इससे पहले आपको अपनी स्किल, चाहे वो कुकिंग में है, चाहे वो कोई और हुनर है, डिजिटल मीडिया है, उसके अलावा बहुत सारी और एवेन्यूज हैं जिसमें आप अपने आप को ट्रेन अभी से करना शुरू कर दें. क्योंकि ये नहीं होगा कि बस जी जॉब ली और बैठ के 10-20 साल जॉब की. अब वो टाइम चला गया. अब तो हालात भी ऐसे नहीं रहे कि आप एक 9 to 5 जॉब से अपने एक्सपेंसेस पूरे कर सकें. इफ आई मे ऐड टू माय फ्रेंड्स कमेंट, मैं अपने यूथ को यही बात बोलूँगी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना पैशन ज़रूर देखें. जिसमें दिल लगता है वो ज़रूर करें. कहते हैं if you make your passion your profession, you are the happiest. Yes. मतलब दूसरे को फॉलो नहीं करें, क्योंकि हमारे, मुझे लगता है कि हमारे ना प्रोफेशंस, एग्जैक्टली हमारे प्रोफेशंस में इतनी ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेशन आ गया, मुझे उससे आगे निकलना, मुझे ये करना, मुझे वो करना. डोंट, रिलैक्स करो, पैशन फॉलो करो, स्किल सेट के साथ. जस्ट नो कि आप लोगों को पसंद क्या है, दिल से क्या अच्छा लग रहा है, उसमें आगे चल सकोगे. किसी को फॉलो करोगे तो आगे नहीं चल सकोगे. बिल्कुल. प्लीज नाज़रीन, काम करने की आदत डालें. बहुत सारे मेहनत करने की, ओह माय गॉड, मेहनत का कॉन्सेप्ट निकल चुका है. फेल होने की आदत डालें. और ये कि दूसरी बात ये कि बैठे बैठे घर में आपको कुछ नहीं मिलेगा. बहुत सारे लोग घर में बैठे रहते हैं निढाल सोफे पे, सोच रहे हैं कि अच्छा अब हम ये बन जाएंगे. ये नहीं हो रहा, वो तो नहीं. बहाने आपके पास है, काम करेंगे तो उसका सिला मिलेगा. बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे ख़वातीन को और हजरात को जानती हूँ तो घर बैठे रहते हैं, उनके सारे एक्सपेंसेस जो है वो पूरे हो जाते हैं. अब वो तरीके ना आजमाएं. वो हैं बहुत सारे ऐसे तरीके जो कि हम लोग सब कर सकते हैं. एक्चुअली हमारा ये यूथ का ये प्रॉब्लम है. मैंने जो स्किल सेट की बात की, बहुत से लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि डिग्री आ गई तो हम लोग घर में बैठे हुए अप्लाई करते रहेंगे. आपको एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप जाएं. करियर के शुरू के 3 से 4 साल में डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपको बहुत अच्छी कोई नौकरी मिलेगी. आपने लर्न करना है, अपनी एक स्किल सेट को डेवलप करना है, आपने अपने नाम को एक डेवलप करना है. और जब आपकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में बन जाएगी, दैट विल बी द पॉइंट जब लोग कहेंगे कि जी हमने इनको हाथ से उठा के अपने पास लेके आना है. एंड दिस इज द रियलिटी. अब जब हम मार्केट में मुझे डेली बेसिस के ऊपर वीडियो एडिटर्स चाहिए, मुझे डेली बेसिस के ऊपर अच्छे प्रोफेशनल लोग चाहिए जो कि कैमरे में
आगे आके अच्छे प्रेजेंटेबल स्टाइल से बोल सकें। हैं बहुत बड़ा एक लॉट है, लेकिन उन्होंने अपने आप को इस तरह से ग्रूम नहीं किया कि वो मार्केट की नीड्स और उस प्रोफेशनलिज्म के अकॉर्डिंग चले। तो मेहनत अभी बहुत, हाँ, एकदम से एक्सपेक्टेशंस का जो प्रॉब्लम है ना कि हम इजीली डेवलप फॉरेन गाड़ी आ जाए, फॉरेन पैसे आ जाए, वो फॉरेन से निकल भी जाता है। फॉरेन से निकल भी जाता है। मुझे याद है कि मेरी पहली जब सैलरी थी, इट वाज 5000 रुपीज। मेरी पहली सैलरी 5000 रुपीज थी और मैंने उस 5000 पे 2 साल काम किया था। सिर्फ 5000 मेरे पैसे आते थे और आई यूज टू राइट अपने यूनिवर्सिटी वाले दिनों में मैं लिखा करती थी, तो मुझे उसके पैसे आते थे 5000 रुपए बस। और वो 5000 रुपए लेके मैं इतना खुश होती थी, मुझे लगता था मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ अपनी जिंदगी में। बिल्कुल, एक प्रोसेस से गुजरे। बहुत जरूरी। शॉर्टकट्स तो फिर ये है कि आप रिश्वत लें, आप कोई गलत काम करें तो फौरन आपके पैसे आ जाएंगे। मेरे ख्याल या कोई पब्लिसिटी स्टंट करें तो रातों रात फेमस हो जाए। लेकिन वही बात है, 2 दिन के लिए अगर आप मशहूर होते तो 2 दिन के लिए, हाँ, ये हो चुका है। क्योंकि फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा है, हम कंपटीशन को जब देखते हैं इतना ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर, आप वायरल होंगे तो ही आपका एक नाम बन सकता होता है, तो उसके लिए लोग फिर ऐसी कोई टैक्टिक्स भी इस्तेमाल करते हैं कि रातों रात वायरल। अब ये भी है कि नेचुरली भी, सॉरी मैं जरा नाज़रीन हमारी आलू करी भी बन रही है, वो भी देख रही है। वो जिस तरह मेरा दिल, अब वो जो कपड़े उन्होंने पहने थे वो अपने साइज से एक्सेल साइज था, स्मॉल के, लेकिन वो उनको मशहूरी मिली तो उन्होंने वो जो ड्रेस है वो 3 लाख रुपए लिख दिया कि 3 लाख का आफ्टर द पॉपुलैरिटी। मुझे इस चीज से मसला नहीं है कि आप वायरल हो गए हो या ये हो गया, आप वायरल हो, हमें ठीक है, हमें आदत है, हम बहुत अजीब चीज़ों की भी कभी कभी तारीफें करते हैं, हम वायरल हो। मुझे मसला ये है कि आपको इतना प्रमोट क्यों किया जाता है। सारे के सारे ब्रांड्स आपके साथ शूट करना चाहेंगे, सारे के सारे अक्रॉस द बॉर्डर भी बात चली गई ना, अक्रॉस द बॉर्डर बात चली जाती है। और मतलब एक वीडियो तक तो ठीक है कि चलो उस वीडियो में कुछ था जो लोगों को पसंद आए, फिर आप उस बच्ची या जो भी कैरेक्टर है उसके दिमाग में आप क्या चीजें डाल रहे हो कि ये करोगे तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगी। ठीक है, वंस शी गॉट द सॉन्ग, एक्चुअली सॉन्ग पुराना था, वो सारा मिलके और वो जो एक स्टेप था वो बड़ा, अब नाउ शी इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस अराउंड द सेम लाइन, लेकिन वो लोगों को अच्छी नहीं लग रही है। इसमें कसूर किसका है? हम सबका, जिन्होंने उनको उस लेवल पे चढ़ाया कि जी हाँ दिस इज समथिंग दैट वी लाइक, नो वी डोंट लाइक दिस। वो वीडियो क्योंकि मुझे लग रहा था जरा घरेलू टाइप था, उसके बाद जो कंटेंट वो क्रिएट कर रही है वो रियल था, ओरिजिनल था। अब वो फेक जो अजीब अजीब कपड़े पहन के तो वो बात चलेगी। सॉरी नाज़रीन, एक क्विक सा एक हमारा क्या ब्रेक है, सॉरी एक हमारा वक्फा है, वापस आएंगे तो मेरी दोनों प्यारी मेहमान भी होंगी साथ, और साथ में ज़रा आलू करी को भी चेक कर लें चुके हैं। और आज बन रहे हैं आलू ग्रेवी विद बॉयल राइस। अभी इसकी शक्ल सूरत आप देख लें, माशाल्लाह बहुत, इसमें 5 मिनट और लगेंगे क्योंकि इसको थोड़ा सा और हल्का सा ड्राई होना है। उसके बाद इसके ऊपर हम गार्निशिंग करेंगे इसकी कोरिएंडर यानी धनिए की, और साथ में थोड़ा सा रायता है, और बॉयल राइस ऑलरेडी जो है बॉयल हुई भी है, बॉयल राइस है। तो वापस आते हैं, मेरी प्यारी सी नबिया साथ में हैं और बख्तावर क़य्यूम है, और अल्लाह बख्शे मेरे ये यूनिसेक्स नाम है, मेरे अल्लाह बख्शे अब्बा का नाम था तो मुझे लेते हैं। I never knew that। उनका नाम तो ये यूनिसेक्स नाम है, तो माशाल्लाह बड़ा प्यारा है। कुछ इंडियन फिल्म्स में ना विलन का नाम भी था जब हम बचपन में, मुझे अच्छा भी लगता था, बड़ी बड़ी शिप्स के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है और मैं बड़ा फील करती थी कि ये क्या लड़कों वाला नाम रख दिया है। अब मैं बड़ा अच्छा महसूस करती हूँ, बिकॉज कहते हैं कि जो मुश्किल नाम जो है वो मुश्किल से याद भी होता है लेकिन मुश्किल से भूलता भी है, और फिर एक यूनिक चीज भी हो जाती है। और वक्त जो है वो आपके उसको नसीब को कहते हैं, ब्यूटीफुल। अच्छा नबिया ने, अभी हम एक ब्रेक में बात कर रहे थे, साइबर आजकल फ्रॉड्स जो हैं वो बहुत हो रहे हैं। अभी मेरे साथ नहीं हुआ था, शुक्र है, वो एक ब्रांड है कपड़ों का, उन्होंने भेजा कि जी जितने अपने SMS करें फलानों को और आपको जो है 50,000 रुपये मिलेंगे। तो वो 4-5 डब्बे थे, उनको मैंने एक को क्लिक किया तो एकदम से उसके अंदर से बलून निकले और कहा कि आपने बिन कर लिए 50,000। मैंने कहा ओके, मैं सबको भेज रही हूँ, लिंक्स भेज रही हूँ, सब मुझे कह रही है फेक है, फ्रॉड है, फिर मैंने बंद किया मैंने उसको। तो इस तरह के साइबर फ्रॉड्स बहुत हो रही है, जो कि नबिया बड़ा एक सीरियस मामला है, प्लीज़ गौर से सुनिएगा ये क्या कहना चाह रही हैं। इनके साथ हुआ है और आप लोगों के साथ कोई ऐसा कॉल आए तो प्लीज़ रिफ्रेन करें, बंद कर दें। जी बताएं। मेरे साथ हुआ ये था कि 1 फरवरी की रात को मेरे भाई जो है अभी मार्केट के लिए निकले ही थे, बिल्कुल 3 मिनट बाद मेरे अब्बू के फ़ोन पे कॉल आई एक, और वो एक अननोन नंबर था
मेरे अब्बू ने उठाया, उन्होंने कहा हम FIA से बोल रहे हैं और हम आपके बेटे को लेके जा रहे हैं और हमने इसको अरेस्ट कर लिया और हम इसको लाहौर लेके जा रहे हैं। तो जाहिर है माय फादर इज़ अ कार्डिक पेशेंट, उनका BP लो हो गया एकदम से, वो बिल्कुल बेड पे लेट गए, बिल्कुल उनका तबीयत ख़राब हो गई। मेरी भाभी इन द मीन टाइम आई एंड शी 7 months प्रेग्नेंट। जब उसने ये न्यूज़ सुनी तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई। जाहिर है आपकी औलाद के लिए इस तरह की कोई कॉल आए तो वैसे ही इंसान डर जाता है कि ये किस तरह की कॉल आ रही है। बिल्कुल। खैर उस बाबा ने खैर उसको बोला कि आप मेरे बेटे से बात कराएं, तो उन्होंने बिल्कुल मेरे भाई की एज का ही बच्चे से, लड़के से सारी इंफॉर्मेशन थी उनके पास, उसी एज ग्रुप के लड़के से उन बाबा की बात कराई और उन्होंने बताया, उसने बोला कि बाबा मुझे ये लेके जा रहे हैं, आप जल्दी से पैसे ट्रांसफर करते हैं, मुझे ये लोग लाहौर लेके जा रहे हैं। एंड देन दे जस्ट टुक द फोन फ्रॉम हिम। और फिर जब आप इतने घबराए हुए होते हैं, आपको नहीं समझ एग्जैक्टली समझ नहीं आती है कि ये सच है, ये झूठ है, ये क्या है। लेकिन क्योंकि मैं सहाफ़ी हूँ तो मैंने ये 2-3 केसेस सुने हुए थे। इन द मीन टाइम मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा, उससे पूछा कि क्या सीन है, कहाँ हो तुम? तो उसने कहा कि मैं तो बस ये मार्केट तक आया था एंड आई एम जस्ट कमिंग बैक। और फिर मैंने जब मतलब बाय द टाइम मैं अपने बाबा को ये बात बताती, बाबा बिल्कुल वो पैसे चेक ये वो सब कुछ करके बैठे हुए थे कि मेरा जो भाई है वो वापस आए। और लेकिन मैंने उनको बताया कि मेरी उससे बात हो गई है, सब कुछ सही है, बट ये इतनी एक डेंजरस वेव स्टार्ट हो गई है सोसाइटी में। देखिए आपके जो सिक्योरिटी की आई थिंक बात कर रहे थे, वो यही है कि पीपल हैव एक्सेस। हम उनको ये भी पता होगा कि वो अपने फादर को बाबा कह के मुखातिब करते हैं और वो सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने ले ली। ये मेरे बिल्कुल घर के साथ वाले मतलब मेरे हमसाये में डकैती हुई है रिसेंटली, और चोर जो आए हैं उन्होंने ये बात बताई है उनको कि हम 1 महीने से खिड़की पे खड़े होकर आप लोगों को नोट कर रहे हैं। हाँ, पहले सर्वे करते हैं ये चोर और चक्के। मतलब मैं इस चीज पे हैरान होगी कि चलो मुझे तो पता था, ठीक है, लेकिन अगर किसी और के घर में इस तरह की बात हो, तो कॉल आए तो वो तो फौरन ट्रांसफर कर दे। मैंने इसके बारे में जब ट्वीट किया, क्योंकि मैं आई वुड नेवर एवर वांट एनीबॉडी टू गो थ्रू दैट पेन, जो हमारा वो आधा घंटा गुजरा है ना, बहुत ट्रॉमा, वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि ये किस तरह की तकलीफ होती है। आपके बिल्कुल पाँव तले जमीन निकल जाती है, यू जस्ट फेल टू फंक्शन कि करे क्या बंदा। और जब मैंने ट्वीट किया तो आप यकीन करें कि नीचे इतने लोगों ने मैसेजेस कमेंट्स किए, मेरे साथ भी यही हुआ है, मेरे साथ भी यही हुआ है, मुझे भी यही हुआ है, मुझे भी कॉल आई है। फिर हमने मोबिलिंग से जब उसका वो नंबर निकलवाया तो इट वाज अ स्पैम नंबर। लेकिन यू गाइस प्लीज बी केयरफुल, क्योंकि जाहिर है जब औलाद के लिए किसी वालिदैन को कॉल आती है तो बंदा नहीं सोचता, और वो आवाज भी उन्होंने नहीं पहचानी होगी। हाँ, बंदा नहीं सोचता कि ये सच है, ये झूठ है, ये क्या हो रहा है, भाई कहाँ है, बेटा किधर है। वो बंदा कहता है मैं इसको किसी तरह तकलीफ से निकालूं। और वो साइकी के साथ इस तरह से खेलते हैं कि आपको समझ में नहीं आता है एंड आप जल्दी से ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब मेरे बहुत से लोगों ने, मैंने सुना है कि उन लोगों ने ट्रांसफर भी कर दिया, और सोचे ट्रांसफर कर दिया, और मतलब छोटी अमाउंट्स भी नहीं, 10-10 लाख, 15-15 लाख। अब जाहिर है आपके बच्चे का औलाद से बढ़ के क्या, औलाद से बढ़ के क्या है। फिर तो बंदे की औकात हो या ना हो, जेब इजाजत दे या ना दे, वो तो फिर कुछ ना कुछ करके 10 लाख जमा करेगा और देगा उसको। नाज़रीन प्लीज, ये वाकई में एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि अभी जो इन्फ्लेशन है, यानी जो चीज़ों की महंगाई जो है अरूज पे है, तो लोग कोई ना कोई आपसे फ्रॉड करने की और पैसे निकलवाने की कोशिश करेंगे। तो आप जब भी, मुझे नहीं लगता ये कहना चाहिए, लेकिन रात को अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और कोई ऐसा सिग्नल है जिस पे कोई गाड़ी नहीं है, तो मेरे ख्याल में उस पर रुकना बनता नहीं है, क्योंकि शायद आपको कोई आके को बहाना करके और शीशा लॉक में बहुत ज्यादा ये होता जा रहा है। इस्लामाबाद वाज सपोज्ड टू बी अ सेफ सिटी, लेकिन काफी सिचुएशंस ऐसे हो चुके हैं। अब आप देखिए यहाँ पे जो स्पार्क में हुआ, उसके बाद एक विहाड़ी में बस में हुआ, मतलब ये इतनी कोई खौफनाक कहानियां हैं। मुझे तो पता है, मुझे ये समझ नहीं आती लोगों में इतनी ऑडेसिटी आ कैसे रही है। बिकॉज हराम खाने से ना, जब आप हराम खाते हैं तो आपकी सारी इनहिबिशंस खत्म हो जाती हैं। अब ये पिछले दिनों में गोश्त था जी, पता नहीं गधों का गोश्त जो आप खाओगे ना, ये पुरानी टर्म है ना, यू आर व्हाट यू ईट। तो ये सारी हराम के पैसे, ये चीजों से सारे पर्दे खत्म हो जाते हैं। सही है, और डेफिनेटली जब आपके मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो यही होगा। सबसे बड़ी बात है कि पीटीए विकिपीडिया को तो उन्होंने
बैन लगा दिया। आप लोग इन जो नाजेबा साइट्स हैं जो कि लोगों के एक्सेस में हैं, आप गूगल निकालें, टाइप करें, सब आ जाता है, सब आ जाता है। बच्चे भी देख रहे हैं, ये आई एम सॉरी, ये जो दूसरे लोग हैं जो इधर उधर, सबके पास आजकल स्मार्टफोन है, इनको ये साइट्स यूएई की तरह ब्लॉक करनी चाहिए। और अगर कोई उसको एक्सेस करना चाहता है तो आपको पता है दुबई की पुलिस आपको आके पूछ लो, उनको पता है कि ये जो नंबर है ये एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। असल में सारा प्रॉब्लम हमारा जो फैमिली का ब्रॉटअप है ना, उसके ऊपर बहुत जाता है। हमारे सोसाइटी ने अनफॉर्चुनेटली जितना फोकस बेटी की तरबियत, बेटी की परवरिश, बेटी की कैरेक्टर, बेटी की एजुकेशन के ऊपर लिया, उतने बेटों की नहीं ली। और यही वजह है कि बेटियां तो अपने आप को सेफ और फील प्रोटेक्टेड मतलब महसूस करती हैं अपनी फैमिली के साथ साथ, लेकिन जो लड़कों का एक कनेक्ट है अपनी फैमिली से वो बहुत कम हो चुका है। और जितनी फ्रस्ट्रेशन, बेटा क्या कर रहा है 2 बजे तक रात को कहाँ पे है, नोबडी नोज। अब मेरे फादर अक्सर कोई उनसे कहते हैं ना कि आपका बेटा नहीं है, तो आप क्या कहते हैं, बेटा होता तो मैं रात को उसको कहीं से पकड़ के ला रहा होता है, बेटियां जहाँ जाती हैं बता के जाती हैं। तो वो एक उनको भी एक आइडिया है कि हमारा जो ब्रॉटअप है लड़कों का वो इस सोसाइटी में इस वजह से भी आ रहा है। फिर वो क्या चीज़ें, क्या इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा है, कोई पूछ नहीं रहा उनसे। और फिर जिस तरह से फ्रस्ट्रेशन हमारे माशरे में आ गई कि हमने निकाह को इतना मुश्किल कर दिया है कि हर दूसरी चीज़ एक्सेसिबल हो चुकी है और उसको हम बुरा नहीं समझते, अब तो हमारे लिए नॉर्मल हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। आई एम सॉरी नाज़रीन, मैं इसलिए खड़ी हुई हूँ, मैं कह रही हूँ चल क्यों नहीं रहा, तो इसकी गैस जो है वो खत्म हो रही है। एक सेकंड, ये तो आजकल हर जगह ही हो रहा है, ना गैस आ रही है ना इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। अब आई है गैस, देखिए अब आई है। मैं कह रही हूँ पक क्यों नहीं रहा, पाए जो पक रहे, अब जाके इसमें हीट आई है। गुलदार भाई स्लीपिंग, व्हाट यू डूइंग? अच्छा नाज़रीन, इट इज डन नाउ। विशी पॉलिटिकल स्टेटमेंट बट वेलकम टू ओल्ड पाकिस्तान। जी जी बिल्कुल, हाँ, वेलकम टू ओल्ड पाकिस्तान। अब आज नाज़रीन, आज का सवाल है, फिर हम वापस आ गए, यूं कर रहे हैं, वापस आ गए। अस्तोला आइलैंड जो है, जो कि बलूचिस्तान में है, दैट इज़ सबसे बड़ा जो जजीरा है वो अस्तोला आइलैंड है। और इसी के हवाले से चल के देखते हैं। मैं आपको पहले दिखा दूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि आज की आलू ग्रेवी विद चुकंदर और किस के पत्ते थे, मूली के पत्ते भी मैंने डाल दिए थे। डिटेल्ड आपने रेसिपी देखनी है तो आप रात को रिपीट में देख सकेंगे, कोई 10:30 बजे और सुबह 5:30 बजे। टारा, एक सेकंड मैं टेस्टिंग भी कर लूँ ज़रा, आलू ऐसे गले, वाह वाह वाह। ऑन दिस नोट, अस्तोला आइलैंड के बारे में चल के देखें कि पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत एक जगह है जो है मेरे आबाई, ब्यूटीफुल। नाज़रीन, इन लोगों के लिए भी मैंने निकाल लिया है और ये इसके ऊपर अब मैं इसको ठीक कर लेते हैं। और एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा, अब चावल हैं, थोड़ा सा रायता है और आप इसको मज़े लेके खाएं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, इसकी डिटेल जो रेसिपी है वो रात में रिपीट में आप देख सकेंगे 10:30 बजे पूरे। कितने प्यारे सॉन्ग्स थे ना नाजिया ज़ुहैब के, ब्यूटीफुल। ऐसे गाने अब नहीं आते, कहाँ आते हैं? नहीं आते। प्यार में ही सारे ये प्यार, सारे दुखी सॉन्ग हाँ, दुखी। आलू ग्रेवी विद बॉइल्ड राइस, आज की डिश जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप लोगों के लिए मैं ला रही हूँ और आप खा के बताएं कि ये कैसा बना है। सही सही, खाने के शौकीन दोनों लग रहे हैं मुझे थोड़े बहुत। लेकिन आई थिंक हमारा ब्रेकफास्ट भी होगा। कौन सा? ये जो भी हम खाएंगे हमारा ब्रेकफास्ट ही होगा। ये ब्रंच होगा आपका। मैं भी बिल्कुल भी आगे आगे करते करते। अच्छा, अब इससे मुझे पूछना है, आप लोग कुकिंग के शौकीन हैं? पहले थी, हाँ। अब क्योंकि ज़रूरत होती है तो फिर मुझे बनाना पड़ता है ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर। लेकिन अब ये कि बिकॉज घर में मैं और पापा होते हैं तो आधी कुकिंग मेरे लिए वो कर लेते हैं। लाइक वो मेरे लिए सब्जी काट देंगे, वो कर लेंगे, तो क्विकली बस मैं मसाले और वो सब चीज़ें बनाते हूँ। तो गुजारे के लिए अच्छी बना लेती हूँ बस। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। नहीं, अच्छा मुझे नहीं शौक, मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। जैसे मतलब अब मैं टर्की मूव कर गई हूँ तो वहाँ मुझे खाना बनाना पड़ता है, तो मैं खाना खाती ही नहीं हूँ। ओह माय गॉड। मतलब मैं पकाऊंगी नहीं, लाइक मिल जाते तो अगर किसी ऐसी मतलब जगह पे जाते अगर मुझे हो जाए कि पका लो तो मैं पकाऊंगी नहीं, मैं खा लूंगी। थैंक यू प्लीज, मैंने जल्दी में डाला है। डिलीशियस एक्चुअली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो खा के मच। देखते। आई थिंक मेरे पापा भी देख रहे होंगे, तो पापा मैंने नाश्ता कर लिया है। थैंक यू मिशी। पापा आपके फिक्र, माँ बाप सारे फिक्रमंद होते हैं, कुछ खाया बस नहीं ये खाया। फिक्र होती है कि खा ले, नाश्ता कर ले। तो मैं अक्सर नाश्ते को स्किप कर रही थी, मीटिंग्स है, रिकॉर्डिंग्स है, जल्दी अच्छा, भागना। मैं घर से नाश्ता के बगैर निकल ही नहीं सकती।
یہ بہت شوق کرتے ہیں. میں نہیں نکل سکتی وہ اس لیے کیونکہ میری جو وہ گھر والے ہیں نا وہ مجھے باقاعدہ کھلاتے ہیں. اچھا میرے پاپا بڑی کوشش کرتے ہیں لا کے چیزیں رکھے ہوتے ہیں تو پھر میں اسے کہتی ہوں کہ ابھی تھوڑا سا بیکاز میری انرجی ایک دم سے ڈاؤن ہو جاتی ہے تو میں کوشش کرتی ہوں. بہت مزے کا بنا. گلزار بھائی چاولوں میں آپ نے بوائل کیے, تھوڑا سا اوپر ایک چمچی جو ہے وہ آئل ڈال دیتے تو کیا ہی بات ہے. صحیح بنا ہے, بہت اچھا, بہت اچھے گلے بہت میں مزے ہیں. کا بنا ہے قسم سے. بہت مزے کا. اشارہ آ رہا ہے کہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. تھینک یو سو مچ نابیہ. سو مچ. بختاور آپ کا کوئکلی سے نابیہ اینی تھنگ یو لائک ٹو سے, کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ Stay healthy, stay positive, take care of yourself and آگے شہرت فیم سب کچھ مل جائے گا. Just take care of yourself and your loved ones. Lovely. Thank you so much. Thank you Inshallah. so much for آپ کا having us. نابیہ نبیہ شاہد ہے ان کا انسٹاگرام کا Instagram. آئی ڈی, اس پہ فالو آپ کر سکتے ہیں ان کو. تھینک یو ونس اگین. Thank you. بختاور آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا بیکاز ابھی ہم تینوں یہاں پہ فیمیلز ہیں تو میں اس اسپیسیفک ٹاپک کو نا ہائی لائٹ آج کل کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو زیادہ فیمیلز کا کمپٹیشن یا فیمیلز کو جو پرابلم ہے وہ میل سے اتنی زیادہ نہیں ہوتی, اسپیشلی ورک پلیس کی اگر بات کی جائے دوسری فیمیل سے زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. تو جو ہمارے ایک پازیٹیوٹی کا فیکٹر ہے, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا فیکٹر ہے, وہ بڑا مس آؤٹ کر رہا ہے. جب ہم فیمیلز اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو بہت سارے ایسے سیناریوز کو فیس کرنا پڑتا ہے جو کہ صرف ہماری فیملیز ہی ہمیں ان چیزوں میں بچا سکتی ہیں. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی دوست ہیں, آپ کی کولیگز ہیں, تو ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. دس از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ. ایک ایمپتھی کا فیکٹر لے کے آئیں, ایک دوسرے سے پیار کریں, نیگیٹیوٹی کو کوشش کریں کہ بہت آلریڈی لوگوں کی لائف میں پرابلمز ہو رہی ہوتی ہیں نہ کریٹ کریں, خود بھی پازیٹیو رہیں اور دوسروں کے لیے بھی ایک اچھی انوائرمنٹ کریٹ کریں. تھینک یو سو مچ. بختاور آپ کا آئی ڈی بتا دیں. بختاور محمود, اور اسی نام سے جو ہے میرے سارے سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں. بختاور محمود کو بھی آپ فالو کر لیں, نبیہ کو بھی فالو کر لیں, اور مجھے بھی فالو کر لیں. مشی خان آفیشیل آن انسٹاگرام, مشی خان آفیشیل ہی ہے آن ٹک ٹاک, اینڈ مشی خان آفیشیل آن یوٹیوب. اینڈ اس شو کا جو پیج ہے آن فیس بک دیٹ از دا مشی خان شو, اینڈ ٹویٹر کے اوپر آپ فالو کر سکتے ہیں مشی خان @mishelicious. بہت بہت شکریہ. اسی طرح KAY2 ٹائپ کریں گے تو آپ ہمارا جو چینل ہے آن یوٹیوب وہ بھی جوائن کر لیں, ساتھ ساتھ ٹویٹر کو بھی جوائن کر لیں. اور گراؤنڈ زیرو ہمارا ایک اور اکاؤنٹ ہے آن اس کے اوپر ٹویٹر کے اوپر گراؤنڈ زیرو, تو اس کو بھی آپ کر لیں گراؤنڈ زیرو PK. اس پہ آپ کو بہت ہی لیٹسٹ جو ہے وہ نیوز ملے گی. اینڈ ایک اور رہ گیا, نہیں کوئی نہیں رہ گیا, ابھی سارے ہیں. ایک آپ لوگوں کے ساتھ پکچر. تھینک یو مشی, تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. آج بڑا زبردست لائیولی شو تھا. 3 3 عورتیں 3 کہانیاں. تھینک یو, آپ کا شکریہ. اینڈ آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین انشاءاللہ آپ سے کل صبح 9:30 بجے ملاقات ہوگی, اور آج کا شو رات میں ریپیٹ میں 10:30 بجے اور صبح 5:30 بجے دیکھنا نہ بھولیے گا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد.